listening, friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, It is a delight and pleasure for us to join you again today. एक बार फिर से आपके साथ सम्मिलित होकर हम बहुत खुश और आनंदित हैं। We have begun talking about the fruit of goodness. हमने भलाई के फल के विषय पर बात करना प्रारंभ किया है। And I mentioned that of all the fruit of the Spirit, goodness and generosity is the one fruit which seemed to be more exclusively, more uniquely an attribute of God. और मैंने बताया था कि आत्मा के सारे फल में से भलाई और उदारता ही एक ऐसा फल है जो अधिक नवीनता और अधिक अनोखेपन से परमेश्वर को प्रकट करता है। Goodness is who God is. भलाई का अर्थ है परमेश्वर कौन है। Think with me for a minute. एक मिनट के लिए मेरे साथ मिलकर सोचें। If there is an innocent man crucified, we would say, wow, isn't that incredible? यदि कोई निर्दोष व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो हम कहते हैं वाह कितना अविश्वसनीय है। But when God dies on a cross for you and for me, that is incomprehensible generosity. परंतु जब मेरे और आपके लिए परमेश्वर क्रूस पर मरता है तो वो ना समझी जा सकने वाली उदारता है। God who left the glories of heaven. वो परमेश्वर जिसने महिमित स्वर्ग छोड़ा। God who was there before the creation of the world. परमेश्वर जो सृष्टि की रचना से भी पहले वहां था। And yet out of generosity he left it all. और फिर भी उदारता के कारण उसने वो सब छोड़ दिया। He took off his glory like a robe. उसने एक चोगे के समान अपनी महिमा को उतार दिया। He came down as an embryo in a virgin's womb. वो एक भ्रूण के रूप में एक कुंवारी के गर्भ में आ गया। Lived as a poor man. एक निर्धन के समान जिया। Healed the sick without charge. बिना कीमत लिए बीमारों को चंगा किया। Raised the dead. मुर्दों को जिलाया। Filled the hungry. भूखों को खिलाया। And then he hung on a cross like a criminal in order to satisfy the justice of God. और फिर वो परमेश्वर के न्याय को पूरा करने के लिए एक अपराधी की तरह क्रूस पर लटक गया। Why? क्यों? So that whosoever comes to him, believing, repenting, and turning to him, will be eternally saved from hell to heaven. ताकि जो कोई मुड़कर पश्चाताप करते हुए और विश्वास करते हुए उसके पास आए, वो सदाकाल के लिए नरक से बचकर स्वर्ग जाने के लिए बचाया जाए। That is the generosity of God that flows out of the goodness of the heart of God. ये है परमेश्वर की उदारता जो परमेश्वर के हृदय की भलाई में से बहती है। Please listen carefully. कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। We become like those whom we spend time with. हम जिनके साथ समय बिताते हैं उन्हीं के समान बन जाते हैं। And when you spend time with God, you will reflect the character of God. और जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो आप में परमेश्वर का चरित्र दिखाई देगा। When you spend time with God, you will be filled with God's Holy Spirit on a daily basis. जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो आप प्रतिदिन के आधार पर परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होंगे। When you spend time with God, you will be filled with goodness and generosity. जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो आप भलाई और उदारता से भरे जाएंगे। Do you spend time with God? क्या आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? Do you spend as much time with God as you spend watching television? क्या आप जितना समय टेलीविजन देखने में बिताते हैं क्या उतना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं? If you don't, why don't you make a commitment today to spend more time with God every day? यदि नहीं तो आज ही आप परमेश्वर के साथ और अधिक समय बिताने का प्रण क्यों नहीं करते? Agathos is generosity that is born of goodness of character produced by the Holy Spirit within us. एगाथोस वो उदारता है जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किए चरित्र की भलाई से पैदा होती है। That is who God is. ये है परमेश्वर। We will continue in this broadcast to talk about goodness and generosity. इस प्रसारण में भी हम भलाई और उदारता के विषय में बात करना जारी रखेंगे। What I'm going to tell you is very important. मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। There are so many Christians who think that the Christian life is a drag. ऐसे बहुत सारे मसीही हैं जो सोचते हैं कि मसीही जीवन एक घसीटने वाली वस्तु है। There are some in the churches who think that the Christian life is hard work. कलीसियाओं में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मसीही जीवन एक कठिन काम है। To some Christians, they think the Christian life is a drudgery. कई मसीहियों के ख्याल में मसीही जीवन एक कड़ा परिश्रम है। Let me declare to you as loud and as clear as I can मैं जितना जोर से ये घोषणा कर सकता हूँ करता हूँ that this is not the Spirit-filled life. कि ये आत्मा परिपूर्ण जीवन नहीं है। This is not the life of the Spirit of God. ये परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं है। The Spirit-filled life is this. आत्मा परिपूर्ण जीवन ये है
The closer you get to the flame of the Spirit, the more joyful you'll become. जितना अधिक आप आत्मा की आग के पास जाते हैं, उतना ही अधिक आप आनंदित बनते जाएंगे। The Spirit-filled life is, the closer you get to the Spirit's fire, the purer you become. आत्मा परिपूर्ण जीवन है कि जितने अधिक आप आत्मा की आग के पास जाते हैं, उतने अधिक आप शुद्ध होते जाएंगे। The Spirit-filled life is, the closer you get to the Spirit's light, the more glowing you become. आत्मा परिपूर्ण जीवन है कि जितना अधिक आप आत्मा की ज्योति के करीब जाते हैं, उतने ही रोशन आप होते जाएंगे। The nearer you get to the fountain, the more overflowing you become. जितना अधिक आप सोते के करीब जाते हैं, उतना अधिक आप ऊपर तक भरे जाएंगे। The closer you walk with Jesus, the more like him you will become. जितना करीब यीशु के साथ आप चलेंगे, उतना ही अधिक आप उसके समान बनेंगे। People will become like their leaders. लोग अपने अगुओं के समान बनते हैं। And when you live the Spirit-filled life, you will become like your leader. और जब आप आत्मा परिपूर्ण जीवन जीते हैं, आप अपने अगुए के समान बनेंगे। Do you want to bear the fruit of goodness and generosity? क्या आप उदारता और भलाई का फल लाना चाहते हैं? Then get filled of the Spirit of God on a daily basis. तो फिर प्रतिदिन के आधार पर परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होइए। Every day, empty yourself of yourself and your own opinions and say, Holy Spirit of God, fill me. Take over today. प्रतिदिन खुद को अपने आप से और अपने विचारों से खाली कीजिए और कहिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा मुझे भरो, आज आप ही संभालिए। Get to know the character of God on a daily basis. परमेश्वर के चरित्र को प्रतिदिन के आधार पर जानिए। Get used to talking to him on a daily basis. प्रतिदिन के आधार पर उससे बात करने की आदत डालिए। Get used to hearing his voice on a daily basis. प्रतिदिन के आधार पर उसकी आवाज सुनने की आदत डालिए। Martin Luther, the great German reformer, said, मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला महान सुधारक था, उसने कहा, Whoever knows that God is gracious to him walks through life along the path of roses, even in tribulation, and for him the land flows with milk and honey. जो कोई ये जानता है कि परमेश्वर उसके प्रति अनुग्रहकारी है, वो मुश्किलों में भी गुलाब से सजे रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन बिताता है और उसके लिए दूध और शहद की नदियां बहती हैं। It is knowing that God is so gracious to you. ये जानना कि परमेश्वर आपके प्रति बहुत अनुग्रहपूर्ण है। And it is your understanding, comprehending, appreciating, and responding to that graciousness of God. और ये परमेश्वर की उस अनुग्रह पूर्णता के प्रति लगातार आपकी सूझबूझ, समझ, प्रशंसा और प्रतिक्रिया ही है That will fill your spirit with life. जो आपके आत्मा को जीवन से भरेगी। There is a common psychological disorder in children which is called attention deficit disorder. बच्चों में आम तौर पर पाया जाने वाला एक मानसिक विकार है जिसे एकाग्रता की कमी कहा जाता है। Those who have this problem have difficulty concentrating and focusing on the task at hand. वो जिन्हें ये समस्या होती है, उन्हें दिए गए काम पर ध्यान लगाने और केंद्रित रहने में कठिनाई होती है। I am convinced that the vast number of Christians must have this problem. मुझे यकीन है कि बड़ी संख्या में मसीहियों को भी ये समस्या है। Except I want to call this spiritual attention deficit disorder. केवल मैं इसे आत्मिक एकाग्रता की कमी का विकार कहना चाहता हूँ। They cannot concentrate on prayer. वो प्रार्थना पर ध्यान नहीं लगा सकते। They cannot concentrate on Bible study. वो बाइबल अध्ययन पर ध्यान नहीं लगा सकते। They cannot concentrate on serving consistently. वो लगातार सेवकाई पर ध्यान नहीं लगा सकते। They cannot concentrate on ministering faithfully. वो ईमानदारी से सेवकाई करने पर ध्यान नहीं लगा सकते। Why? क्यों? Like that child with that particular disorder, they are fighting too many biological and learned forces that easily distracts them. इस खास विकार से पीड़ित उस बच्चे के समान ही कई मसीही भी बहुत सारी शारीरिक और निपुण शक्तियों से लड़ रहे हैं जो आसानी से उनका ध्यान भंग कर देती हैं। To be sure, we are fighting many things. ये निश्चित है कि हम बहुत सारी चीजों से लड़ रहे हैं। We have to fight fallen nature distraction. हमें गिरावट में चले गए स्वभाव के ध्यान भंग के साथ लड़ना पड़ता है। We have to fight the devil distraction. हमें शैतान के हमारा ध्यान भंग करने के प्रयासों से लड़ना पड़ता है। We have to fight a world system distraction. हमें ध्यान भंग करने वाली संसार प्रणाली से लड़ना पड़ता है। We have to fight television and media distraction. हमें टेलीविजन और इसके ध्यान भंग करने वाले माध्यमों से लड़ना पड़ता है। There is only one way that you and I can overcome these distractions. केवल एक ही तरीका है जिससे हम इन ध्यान भंग करने वाली सब बातों और चीजों से बच सकते हैं।
There's only one way you and I can develop the character of God. केवल एक ही तरीका है जिससे आप और मैं परमेश्वर का चरित्र विकसित कर सकते हैं, And that way is by making time to be with Him every single day. और वो है प्रतिदिन उसके चरणों में बैठने का समय निकालना। You may have to get up 1 hour early in the morning. शायद आपको सुबह 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। You may have to watch 1 hour less television. शायद आपको 1 घंटा टेलीविजन कम देखना होगा। You may have to have someone to hold you accountable for spending time with God. शायद परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए आपको किसी को जवाब देना पड़ेगा। Do whatever it takes to be filled daily so that you can develop the fruit of goodness and generosity. प्रतिदिन परिपूर्ण होने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े कीजिए, ताकि आप भलाई और उदारता का फल विकसित कर पाएं। Let me tell you a story that is a telling story, but it will demonstrate what I'm trying to tell you. मैं आपको एक कहानी बताता हूं जो एक प्रचलित कहानी है, परंतु ये वो प्रकट करेगी जो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। This is a true story that happened in the 50s in a large city. ये एक सच्ची कहानी है जो 50 के दशक में एक बड़े शहर में घटी। A beggar stopped a well-dressed businessman on the street in that large city and asked the businessman for a small amount of money. उस बड़े शहर में एक दिन एक भिखारी ने सड़क पर जा रहे सूट बूट पहने एक व्यवसायी को रोका और उससे कुछ पैसे मांगे। Taking a good, long, hard look into the beggar's unshaved face, the businessman asked, उस भिखारी की बढ़ी हुई दाढ़ी और चेहरे को देर तक अच्छी तरह से देखने के बाद वो व्यवसायी बोला, "Don't I know you from somewhere? ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें कहीं से जानता हूँ? Have I met you somewhere? Your face is familiar." क्या मैं पहले तुमसे कहीं मिला हूँ? तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगता है। The beggar said, "You should. I am your former classmate. Remember our classroom and the teacher and so." भिखारी ने कहा, हाँ तुम्हें याद होना चाहिए, मैं तुम्हारा पुराना सहपाठी हूँ, याद है हमारी कक्षा, हमारा अध्यापक और कई कुछ। The businessman's face lit up with recognition. व्यवसायी का चेहरा पहचान से खिल उठा। He said, "Why, Sam, of course I know who you are." उसने कहा, क्यों सैम, निश्चय ही मुझे पता है तुम कौन हो। Without any further questions, the businessman pulled out his checkbook and wrote him a large check. बिना कोई और प्रश्न पूछे उस व्यवसायी ने अपनी जेब से अपनी चेकबुक निकाली और एक बड़ा सा चेक काट कर उसे दिया। And then he said to him, "Here, take this, go to the bank and get a new start." और फिर उससे कहा, ये लो, बैंक जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। It doesn't matter what happened in the past. What is important is the future. अतीत में जो हुआ वो कोई मायने नहीं रखता, भविष्य अधिक महत्वपूर्ण है। And then the beggar and the businessman went their own ways. और फिर वो भिखारी और व्यवसायी अपने अपने रास्ते चले गए। Tears welled up in the beggar's eyes as he walked toward the bank nearby. पास के बैंक की तरफ जाते हुए उस भिखारी की आंखों में आंसू छलक पड़े। Stopping at the bank, he peered through the glass and he saw a well-dressed bank teller. बैंक के बाहर रुककर शीशे में से अंदर झांकते हुए उसने सूट बूट पहने बैठे हुए बैंक के खजांची को देखा। He looked at the spotlessly clean interior and the highly polished floor. उसने बैंक की शानदार दाग रहित सजावट और चमकदार फर्श पर ध्यान दिया। And then he looked at his filthy rags and he thought to himself, "I can't go in there. और फिर उसने अपने फटे पुराने चिथड़ों को देखा और सोचा, मैं अंदर नहीं जा सकता। They will not take this check from me. वो मुझसे ये चेक नहीं लेंगे। They will think I forged it. वो सोचेंगे कि मैंने इस चेक पर नकली हस्ताक्षर किए हैं। They will not give me that kind of money." वो मुझे इस प्रकार का पैसा नहीं देंगे। As he muttered these words to himself, he turned away and left, jamming the check into his pocket. अपने आप में ये शब्द बड़बड़ाते हुए उसने चेक को अपनी जेब में ठूंसा और वापस मुड़ गया। The next day, the two men happened to meet again. अगले दिन उसकी भेंट फिर उसी व्यवसायी से हो गई। The businessman looked very surprised and he said to him, he said, "Why, Sam, why didn't you cash the check?" वो व्यवसायी बहुत हैरान हुआ और उसने उस भिखारी से कहा, सैम क्यों तुमने चेक कैश क्यों नहीं करवाया? Did you gamble it? क्या तुमने इससे जुआ खेल लिया? Did you drink it? क्या तुमने इसकी शराब पी ली? No, said the beggar, भिखारी ने कहा नहीं। as he pulled the check out of his dirty shirt pocket and told his friend why he did not cash the check. अपनी गंदी सी कमीज की जेब से चेक निकालते हुए अपने मित्र को उसने बताया कि उसने चेक क्यों कैश नहीं करवाया। The businessman looked him in the eye and said, उस व्यवसायी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, "Listen, my friend, सुनो मेरे दोस्त, what makes the check good is not your clothes or your appearances,
but my signature. चेक की कीमत तुम्हारे कपड़े या तुम्हारी दिखावट से नहीं है, परंतु मेरे हस्ताक्षर की वजह से है। Go and cash it. जा और इसे कैश करा। Beloved listening friends, listen to me carefully. प्रिय श्रोता मित्रों, कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुने। I want to tell you that there are many Christians who are spiritually in rags. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे मसीही हैं जो आत्मिक रूप से चिथड़ों में हैं। Oh, they may be dressed well, clothes-wise, वो पहरावे के तौर पर चाहे उनके कपड़े बहुत बढ़िया लगते हों, but spiritually they are tattered and bedraggled. परंतु आत्मिक रूप से वो कीचड़ से भरे हुए और फटे हुए हैं। They look at the fruit of the Spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control from the outside, and they say, I cannot do that. वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम के आत्मा के फल को बाहर से देखकर ही कहते हैं, ये मुझसे नहीं हो सकता। Just like that beggar. बिल्कुल उस भिखारी के समान। They read these words from Galatians chapter 5 verse 22 and they say that is impossible. वो गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 22 पद के इन वचनों को पढ़कर कहते हैं, ये असंभव है। Like that beggar on the outside of the bank looking in and saying, I can't do that. बिल्कुल वैसे ही जैसे वो भिखारी बैंक के बाहर खड़े खड़े ही अंदर देखकर कहता है, ये मुझसे नहीं होगा। And the devil loves to see you in that defeated mode. और आपको इस पराजित स्थिति में देखना शैतान को बहुत अच्छा लगता है। The devil loves to see you helpless in a state of resignation. आपको समर्पण की दशा में असहाय देखना शैतान को बहुत अच्छा लगता है। But here's the good news. परंतु ये है खुशखबरी। God comes in through his word and says, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आकर कहता है, it is not your spiritual rags that matter. तुम्हारे आत्मिक चिथड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। It is not your effort that will help you. तुम्हारी अपनी कोशिशों से कुछ नहीं होगा। It is not your trying harder that will bless you. तुम्हारे सख्त प्रयत्नों से तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी। It is not your public image that you are trying to project that will bless you and help you. तुम्हारा सार्वजनिक रूप नहीं है जो तुम प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हो कि ये तुम्हें आशीषित और तुम्हारी मदद करेगा। No, no. नहीं नहीं। Listen to Galatians 5:24 and 25. गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 24 और 25 पदों को सुनिए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। God is telling us the following. परमेश्वर हमें ये कह रहा है, It is my strength that counts. बात मेरी शक्ति की है। It is identifying with me that will give you power. मेरे साथ खुद को जोड़ने से ही तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है। It is associating with me and my son and spending time with me and my word in prayer that will bless you with goodness and overflowing generosity. मेरे और मेरे पुत्र के साथ जुड़ना और प्रार्थना में मेरे साथ और मेरे वचन के साथ समय बिताना ही तुम्हें भलाई और छलकती हुई उदारता के साथ आशीषित करेगा। Galatians 5:16 says, so I say, live by the Spirit and you will not gratify the desire of the sinful nature. गलतियों की पत्री 5 अध्याय का 16 पद कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं, आत्मा के अनुसार जियो तो तुम शरीर की वासनाओं की पूर्ति करने से बचे रहोगे। God is saying to every one of us today, आज परमेश्वर हम में से प्रत्येक से कह रहा है, I gave my son. मैंने अपना पुत्र दे दिया। He died for you on the cross. वो तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा। It is Jesus' signature that counts. ये यीशु के हस्ताक्षर हैं जिनकी कीमत है। The Holy Spirit is your bank. पवित्र आत्मा आपका बैंक है। Go and cash the check. जाओ और चेक को कैश कराओ। It is God the Father's signature that counts. ये पिता परमेश्वर के हस्ताक्षर हैं जिनकी कीमत है। Will you do that today? क्या आज ही आप ऐसा करेंगे? It is my deep desire and prayer that you do. ये मेरी गहरी इच्छा और प्रार्थना है कि आप ऐसा करें। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।